Good morning, students. Today we will discuss isomerism. Now, in 11th, we have discussed in detail. You remember when molecular formula is same and structural and physical properties are different, then this phenomenon is known as isomerism, and molecules exhibiting them are called isomers. Similarly, in coordination compounds, we see this phenomenon and we have classified them also into structural and stereo. Structural isomerism means molecular formula is same but structural formula is different. And stereoisomerism means molecular formula and structure is same but arrangement of ligands around the central metal ion is different. We will discuss one by one. First, structural isomerism. Now, structural isomerism is have different types. First one is ionization isomerism, as name suggests. The compound have same molecular formula but in their aqueous solution. जब आप उसको पानी में डिजॉल्व करेंगे they will give different ionizable ions. एंड नेचुरली जो आयंस आपके आयोनाइज हुए हैं उसमें से सिंपल आयंस विल गिव यू टेस्ट same as that we have performed in 11th. For example, the given example is platinum NH3 4Cl2Br2. इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं. इन फर्स्ट वे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट स्फीयर जो कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसमें Cl2 is in coordinate part of coordinate sphere acting as a ligand and bromide ion is ionizable ion, and in another bromide ion is acting as a ligand and chloride ion is ionizable. When we dissolve in it in water, we will get complex ion and bromide ion. Here we get complex ion and chloride ion. So this will give white precipitate with silver nitrate. ये आपका क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट था या आपको याद होगा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वो आपको ये कंपाउंड देगा. ये कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा और सिल्वर नाइट्रेट के साथ इट विल गिव यू लाइट येलो प्रेसिपिटेट. तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो आयंस मिलेंगे वो आपको डिफरेंट मिलेंगे और उनके कंफर्मेटरी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कौन सा आयन आपका आयोनाइजेबल है. Now, one more example I have given you here in which sulfate is in the part of coordinate sphere and chloride is outside. In another isomer, sulfate is ionizable and chloride is inside the coordinate sphere. तो it won't give the confirmatory test of sulfate. तो आप इसके अंदर अगर बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो आपको टेस्ट वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा और अगर आप यहाँ डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा. यस, कैन यू सी हियर BaCl2 ऐड करने से आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. देन कम टू अनदर आइसोमर विच इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. हाइड्रेट, as the name suggests, it has something to deal with water. Now here water, some of the water molecules will behave as ligand and in some isomer it will behave as
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद वाटर मॉलिक्यूल whether it is present as a ligand or as a water of crystallization, you will have two different molecular formulae and this is known as hydrate isomerism। जैसा कि आप गिवन एग्जांपल्स में देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर हमारा प्योरली लिगेंड एक्ट कर रहा है, वहीं पे यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया है एंड इट विल एक्टिंग एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड आपको ये भी पता चलेगा इस आइसोमेरिज्म में दे आर एग्जिबिटिंग डिफरेंट कलर्स, जो हम आपको कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ अनदर isomerism has been observed where both anion as well as cation are complex. Here I have given you shown you an example. It will be triethylene amine। तो आपका ये ऑर्गेनिक है तो ट्रिस और कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ट्रिस ऑक्सलेट क्रोमेट, क्योंकि ये अनायन है। ये तो वही बात नाम की जो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। अब बच्चे यहाँ पे आप देखिए मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड्स का, इसका और इसका सेम है। द डिफरेंस इज लिगेंड्स हैव बीन एक्सचेंज्ड। तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर जहाँ पे आपके एनायन और कैटायन दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे वो इस तरह का आइसोमर दिखाएंगे। इट्स very simple to identify them. Then another isomerism shown is known as linkage isomerism. As you know, ambidentate ligands are those which have two or more than donor atom but act as monodentate ligands। मेटल के साथ एक ही पॉइंट पे अटैच्ड होगा तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे कि आप देख रहे हैं NO2 और यहाँ पे ONO, यानी कि यहाँ पे N आपका क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे O। तो इस तरह आपके जब एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो दे आर एबल टू शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। वन मोर थिंग, कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो लिगेंड्स हैं वो ही आइसोमर शो करते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ ऑर्थो क्लोरोफेनाइल, पैरा एंड मेटा पैरा 2, 3, 4 पोजीशन। तो इनको हम बोलते हैं सिंपली लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये तो बात हुई आपके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है आपका शो करते हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेशन 4 बट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो वहाँ चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो दे कैन नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 which have octahedral geometry, but condition is in both the cases they should have different ligands, more than one. So we should say it is the property of heteroleptic coordination compounds. Now here first we will see square planar 1. Let's see, आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे सिस और ट्रांस। तो सिस हम कब कहते हैं, जब आपकी पोजीशन एडजेसेंट में सिमिलर लिगेंड्स प्रेजेंट है। ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, तो वन ऑफ देम इज एडजेसेंट। अगर आपके सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट Cl अमीन अमीन, एडजेसेंट पोजीशन में अगर सिमिलर लिगेंड्स हैं तो उसे हम सिस कहेंगे, और अगर सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो हम उसे ट्रांसफॉर्म कहेंगे। और ये मैंने आपको एग्जांपल करवाया है। यहाँ पे पहला एग्जांपल वो है जहाँ पे Ma2B2 मीन्स A एक लिगेंड है, B एक लिगेंड है, उसके दो टाइप्स प्रेजेंट है A2 एंड B2।
एंड अनदर इज जब बी और सी दोनों अलग हैं, तो बी और सी दोनों अलग हैं तो आपके जो तो सिमिलर लिगेंड्स हैं उनको आप सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया में रखेंगे। जैसे अमीन, तो आप अमीन के एडजेसेंट पोजीशंस में हैं तो इनको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। और सिंस यहाँ पे अमीन्स अपोजिट टू ईच अदर हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। इट शुड बी नाउ क्लियर। एंड सिमिलरली वन मोर थिंग वी ऑब्जर्व, अगर चारों लिगेंड्स अलग हैं तो आप एक लिगेंड की पोजीशन फिक्स कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अमीन की पोजीशन फिक्स कर दी है और एक एक बार हर लिगेंड को उस पर ट्रांसपोजिशन में रखा है। तो ये तो बात हुई स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की शो करने की। इसमें एक और एग्जांपल बताया है, अगर आपके पास बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स प्रेजेंट है तो भी वो आपको दिखाई देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, तो एग्जांपल में आप देखिए अनसिमेट्रिकल मतलब आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, NH2CH2 CO, दिस इज ग्लासिनेटो। और यहाँ पे भी तो NH2 पास है, इनको हम कहेंगे एडजेसेंट है, सेस ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6। वहीं पे दूसरे केस में आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिमिलर आर ऑन अपोजिट साइड, NH2 आर ऑन अपोजिट साइड, तो आप उसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। नाउ अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। पहला MA4 यानी कि आपके 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है, उसमें से एक के नंबर 4 हैं और दूसरे के 2, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आपके अगर सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट प्रेजेंट हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे, सिस। यही रूल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट साइड में हैं जैसे आप देख रहे हैं तो ये आपका है ट्रांस। यस, एंड इसी तरह आप देखेंगे आपका अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो आपका सिमेट्रिकल होगा, उस तो सिस फॉर्म उसकी आपकी That will again show cis and trans isomer। ये आपका एग्जाम्पल है MA, MA and B2, तो EN and EN, ये आपके 2 एग्जाम्पल्स हैं। बेटा ये तो हो गई सिंपल लिगेंड्स की, है ना। तो यहाँ पे EN एडजेसेंट है, यहाँ पे दे आर अपोजिट, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस और इसको बोलेंगे सिस। अब हम बात कर रहे हैं MA3B3, तो इसमें बेटा आपके ये एक ही साइड में प्रेजेंट है। जैसे ये, इनको आप जोड़ो, इसको आप जोड़ो तो एक ही प्लेन में, सिमिलर प्लेन, तो इनको हम बोलेंगे फैशियल, तो FAC आइसोमर। और यहाँ पे आप देखिए ये है आपका FAC, यस, सिमिलर प्लेन पे है। और यहाँ पे ये आपके इक्वेटोरियल प्लेन पे है, ये देखिए, या ये इक्वेटोरियल प्लेन, तो इसको आप कहते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। ये तो बात हुई ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसा कि आपने अभी ऑर्गेनिक के चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारी जो पोलराइज्ड लाइट होती है अगर हम उसको पास करते हैं तो इन कंपाउंड से, और वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें या तो राइट में या लेफ्ट में, तो उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और इस आइसोमरिज्म को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नाउ ये भी कोऑर्डिनेशन 4 और कोऑर्डिनेशन 6 वाले शो करते हैं। उसमें भी कोऑर्डिनेशन 4 में टेट्राहेड्रल शो करता है, स्क्वायर प्लेनर विल नॉट शो, एंड क्योंकि इट हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन
टेट्राहेड्रल में आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, तो बेटा आप इसको उठा के इसके ऊपर रखें, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। जैसे आप देखिए अल्फ़ाबेट ए, तो ए को उठा के आपने ऊपर रख दिया तो ए के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इम्पोज नहीं होगा तो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। और यहाँ पे मैंने आपको 2 और एग्जांपल्स कराए हुए हैं। कंडीशन क्या है? यू हैव सिमेट्रिकल लिगेंड। और यहाँ पे मज़े की बात देखिए, लास्ट एग्जांपल में सिस फॉर्म तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये जो ट्रांसफॉर्म है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।